Good morning everyone. I Dr. Neeraj, Assistant Professor in Department of Agriculture, Jharkhand Rai University. Welcome all of you on this platform. And this lecture is about the first unit, and the topic of this lecture is origin of life and growth, reproduction, homeostasis, that is properties of life. Now move to next slide. The content of this presentation is theory of origin of life, that is theory of spatial creation, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis, theory of panspermia, theory of biochemical evolution. The second topic is properties of life, that is organization, metabolism, homeostasis, growth, reproduction, response and evolution. I will tell you all these topics one by one in the given slides. Now move to next one. ओरिजिन ऑफ लाइफ का जिक्र आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई, यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, सन, स्टार्स और जितनी भी हमारे आसपास लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे फॉर्म हुई. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो आइडिया था दैट इज़ केम फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी है वो 1928 में दी गई. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, and this universe origination begins with the thermonuclear explosion that is called big bang of a dense body. okay? और इस तरह यूनिवर्स जब एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स ने एक्सपांशन करना शुरू किया. एक्सपांशन हुआ, इनिशियली जो टेम्परेचर कंडीशन थी दैट इज़ वेरी हॉट कंडीशन. ओके, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी वो फॉर्म हुई, और ये जो गैसेस थी जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो दोज गैसेस विल कंडेंस्ड. ओके, और कंडेंस्ड हुई अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दे फॉर्म द गैलेक्सीज और डिफरेंट गैलेक्सीज. अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है दैट वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. जो स्टार्स हैं, डिफरेंट स्टार्स आप देखते हैं आसमान में, दे फॉर्म्ड 13 बिलियन ईयर्स अगो. जो सन है इट फॉर्म्ड 4.8 बिलियन ईयर्स अगो. जो अर्ली अर्थ था, जो अर्ली अर्थ की सिचुएशन थी जब ऑक्सीजन नहीं थी हमारी अर्थ पे, तो वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ. और जो फर्स्ट ओशियन फॉर्म हुए अर्थ पे दैट फॉर्म्ड इन 3.8 बिलियन ईयर्स अगो. तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ कि इनिशियल स्टेजेस पे जो डिफरेंट चेंजेस हुए यूनिवर्स में वो कितने साल पहले हुए. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Several attempts have been made from time to time to explain the origin of life on earth, and some theories are based on faith, some theories are based on experiments, scientific experiments. So different people ने different theories दी. So there are some theories which are given in this slide. First is theory of spatial creation, second is theory of spontaneous generation, third is theory of biogenesis, fourth one is theory of panspermia, fifth one is the theory of biochemical evolution. So these theory are explained in the above slides. So let's go to next one. The first theory is theory of spatial creation. According to this theory, the life is created by the supernatural powers, or we can say that all different forms of life are created by God. इसके लिए different concept थे. जैसे हिंदू concept के according Lord Brahma created this universe. ओके, और क्रिश्चियनिटी इस्लाम के अकॉर्डिंग डिफरेंट बिलीव थे. अकॉर्डिंग टू इस्लाम द वोल यूनिवर्स इज क्रिएटेड विद इन 6 days. ओके, तो ये जो स्पोर्टर थे इस थ्योरी के वो थे फादर सुएरेज. तो ये जो थ्योरी थी दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द फेथ और बिलीफ ऑफ पीपल. ओके, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, इन थ्योरी का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था. दैट्स वाई दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाई अदर साइंटिस्ट. Okay, and there were 3 main postulates of this theory. The first one is all different kind of animals and plants were created at once. Second is all organisms were created in the same form in which they exist today. And third one is that their bodies and organs have been designed to fully meet the needs of the environment. So this is the main points of this theory. Now move to next one. This presentation about 2 theories, theory of spontaneous generation and theory of biogenesis. जो theory of spontaneous generation है उसको हम theory of abiogenesis, biopoiesis
और थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं। जो ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, इट इज सपोर्टेड बाय एरिस्टोटल, एपिकर्कस, वॉन हेलमोंट, ये इनके द्वारा सपोर्ट की गई। अकॉर्डिंग टू दीज पर्सन, द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर। उन्होंने ऐसा माना कि जो लाइफ है या लिविंग जो बॉडीज हैं, लिविंग जो थिंग्स हैं, दे कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर। उनके अकॉर्डिंग जो इंसेक्ट हैं, दे कैन अराइज फ्रॉम मीट, दे कैन अराइज फ्रॉम ड्यू, फिश एंड फ्रॉग कैन अराइज फ्रॉम मड एंड फ्लाई मैगेट्स फ्रॉम मीट, ये ऐसा मानते थे। लेकिन देर वर टू साइंटिस्ट, फ्रांसिस्को रेडियाई, स्प्लेंजानी एंड लुइस पाश्चर, वो डिसअप्रूव्ड दिस थ्योरी। उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया बाय देयर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है दैट ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ओके, लाइफ है वो प्रीवियस लाइफ से ही ओरिजिनेट हो सकती है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे जो फ्रांसिस्को रेडियाई है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 3 जार लिए एंड ही टुक द फ्लैश एंड कुकड इट। कुकड करने से जो फ्लैश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल हो गए, यानी कि वो स्टेरलाइज हो गया। उसके बाद उसने इस मीट पोर्शन को 3 जार में रखा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और एक जार को उसने ओपन रखा, सेकंड जार को उसने गोज से कवर किया और थर्ड जार को उसने सील कर दिया। एंड ही फाउंड दैट आफ्टर 1 or 2 month ही फाउंड दैट जो ओपन जार था उसमें मैगेट्स डेवलप हो गए, जो गोज कवर्ड जार थे उसमें जो सरफेस था गोज का उस पे मैगेट्स डेवलप हुए, और जो सील्ड जार थे उसमें ही फाउंड देर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ, यानी कि उसमें कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। तो ही फाउंड दैट, उसने इससे अंदाजा लगाया कि जिस ओपन जार में उसने मीट का लोफ रखा था उसमें जो फ्लाइज थी उन्होंने विजिट किया और उन्होंने अपने एग को उस पे छोड़ दिया, जिससे उनके एग से फर्दर मैगेट्स डेवलप हुई। वहाँ पे जो गोज कवर्ड जार थे और सील्ड जार था उस पे जो फ्लाइज थी वो उस मीट के टुकड़े पे नहीं बैठ पाई और एग उन्होंने वहाँ पे नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई लाइफ नहीं फॉर्म हुई। तो रेडियाई जो थे उन्होंने ये प्रूव किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मीन्स लाइफ ओनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए लाइफ का होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो लुइस पाश्चर ने किया। एज वी ऑल नो, लुइस पाश्चर इज फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है। आप मिल्क जो पाश्चराइजेशन है वो भी लुइस पाश्चर से आया है, ओके। जो स्टेरलाइजेशन पाश्चराइजेशन जो दी थी टेक्नोलॉजी वो लुइस पाश्चर ने दी थी, और मिल्क पाश्चराइजेशन को हम आज भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने पाश्चर इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। पाश्चर इंस्टीट्यूट अगर इंटरनेशनल की बात करें तो पेरिस में सिचुएटेड है, और अगर हमारे इंडिया में बात करें तो पाश्चर इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, ओके। तो इनके नाम पे पाश्चर इंस्टीट्यूट भी बने हैं। तो इन्होंने क्या किया, ही टुक ए फ्लास्क, इस फ्लास्क की में उन्होंने जो ब्रोथ था उसको बॉयल किया, ओके। ब्रोथ के बॉयल होने से वो स्टेरलाइज हो गया, और उसके बाद इसने क्या किया, ये जो फ्लास्क की नेक थी उसको बेंड कर दिया, जिसको कहा गया स्वान नेक, क्योंकि इसकी शेप स्वान की नेक जैसी थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस ब्रोथ को ऐसे ही छोड़ दिया 1 या 2 महीने के लिए। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो ब्रोथ था उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप नहीं हुआ। इसका रीज़न ये था क्योंकि हमें पता है कि बाहर इन्वायरमेंट में देयर आर ए लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ओके। जब ये जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब उस फ्लास्क के अंदर, मतलब जो एयर के थ्रू उस नेक के अंदर गए, तो वो जो नेक की जो स्वान नेक थी उसमें वो ट्रैप हो गए, जिससे वो ब्रोथ तक नहीं पहुंच पाए, ओके। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फिर से ब्रोथ को बॉईल किया और उसी स्वान नेक फ्लास्क में डाला और उसकी नेक को बेंड कर दिया। लेकिन अब की बार उन्होंने उस जो नेक है उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या हुआ, जो फ्लास्क का माउथ था इट इज डायरेक्टली ओपन इनसाइड एयर, तो एयर का उससे इन्फिल्ट्रेशन हो गया। तो एयर में देर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ब्रोथ के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट मिल गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड देयर ग्रोथ। तो उन्होंने देखा कि 1 या 2 महीने के बाद उस ब्रोथ में माइक्रोबियल ग्रोथ आ गई। तो ही ऑल्सो डिसअप्रूव्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, की जो लाइफ है
वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं आती, लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव किया, लेकिन ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को वो नहीं कर पाए, प्रूव नहीं करवाए इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि जो इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का अर्थ पे, क्योंकि पहले तो कोई लाइफ ही नहीं थी अर्थ पे। देर आर जो अर्थ थी दैट इज़ वेरी हॉट, आफ्टर सम टाइम द लाइफ आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। तो लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेडियाई अपोज करते थे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। दिस स्लाइड इज अबाउट थ्योरी ऑफ पंसपर्मिया। जो पंसपर्मिया वर्ड है इट इज़ ए ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है सीड्स एवरीवेयर। इस थ्योरी को हम कॉस्मोजोइक थ्योरी और स्पोर थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी प्रपोज की थी रिचर ने 1865 में। उनके अकॉर्डिंग, रिचर के अकॉर्डिंग वो ऐसा मानते थे कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ पे, ये लाइफ जो आई है वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई है थ्रू कॉस्मिक डस्ट, यानी कि कॉस्मिक डस्ट के थ्रू जो स्पोर्स और जर्म्स हैं लाइफ के, वो किसी दूसरे प्लेनेट से इस पूरे यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए लाइफ अर्थ पे आए और अर्थ पे उन्होंने लाइफ को इवोल्यूट किया। ओके, ये जो थ्योरी थी ये एरिहीनियस के द्वारा भी सपोर्ट की गई। एरिहीनियस भी एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं आज के दौरान अर्थ पे, दे आर ब्रिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, कि ये यूनिवर्स जो है उसमें दूसरी जगह पे भी इसी तरह के स्पोर्स और जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, और जो लाइफ है वो ट्रेवल कर सकती है स्पेस में फ्रॉम वन प्लेनेट टू अदर प्लेनेट। और बहुत साल पहले ये जो लाइफ थी अर्थ पे ये किसी दूसरे प्लेनेट से आई है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स। ओके, लेकिन ये जो थ्योरी थी इसका एक डीमेरिट ये था कि एविडेंस नहीं थे। जो एविडेंसेस थे दे आर अगेंस्ट कॉस्मोजोइक थ्योरी, क्योंकि हम मानते हैं कि जो अर्थ के बाहर का इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट। ओके, ड्राई कंडीशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो हाउ समवन कैन सर्वाइव आउटसाइड द अर्थ, क्योंकि वहाँ तो सिचुएशंस ही नहीं है, बहुत हार्श कंडीशन है, जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है, ड्राईनेस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सन की हार्मफुल रेडिएशंस हैं। तो वहाँ पे जब कोई भी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे लाइफ जाएगी तो इतने हार्श कंडीशन को कैसे सर्वाइव कर सकती है। तो इस वजह से ये जो ये थ्योरी थी ये भी डिसअप्रूव हो गई। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। This is the last theory of origin of life, that is called modern theory, Oparin-Haldane theory और origin of life. ओके, इस थ्योरी को हम फिजियोकेमिकल थ्योरी भी कहते हैं, मेटीरियलिस्टिक भी थ्योरी भी कहते हैं, नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट ने दी थी। द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज रशियन साइंटिस्ट दैट इज AI Oparin एंड सेकंड इज JBS Haldane दैट इज इंग्लिश साइंटिस्ट। तो इन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव अर्थ था वो इस फेवरेबल था टू फॉर्म लाइफ। आज के दौरान जो आज की अर्थ है दैट इज उस पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव अर्थ था उस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी उस टाइम। तो जो इन्वायरमेंट था दैट इज़ रिड्यूसिंग टाइम। तो इन्होंने कहा जो अर्ली अर्थ था उस पे जो ये फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हुई, इसमें सबसे पहले एटम फॉर्म हुए। एटम ने मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे वो फॉर्म हुए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने मिलके जैसे इंटरेक्ट करके मेजर कंपाउंड्स बनाए, मैक्रो कंपाउंड्स बनाए। जैसे उस टाइम जो अमीनो एसिड थे उन्होंने फॉर्म करके प्रोटीन्स बनाया, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुए, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ। एंड यू ऑल नो ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट हैं, यही मिलके सेल बनाते हैं। तो इनिशियल में प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ने मिलके मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाया, यूकैरियोट्स बने। तो इस तरह लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। और ये जो फेजेस थे दे आर पॉसिबल ओनली ऑन अर्ली लाइफ
अर्ली अर्थ सिचुएशन। आज के दौरान ये नहीं हो सकता, लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती विदाउट लाइफ। आज लाइफ सिर्फ प्रीवियस लाइफ से ही आ सकती है, लेकिन उस टाइम जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, एटम से ओरिजिनेट हुई थी। और इसको प्रूव किया दो साइंटिस्ट ने बाद में, जैसे हेल्डेन और ओपेरिन ने ये थ्योरी दे दी, लेकिन यूरे और मिलर जो हुए उन्होंने इसको प्रूव किया बाय यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। जो स्टेनली मिलर थे वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होते थे शिकागो यूनिवर्सिटी में, और जो यूरे थे वो उनके एडवाइज़र होते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उन्होंने एक बॉइलिंग चैम्बर लिया, उस बॉइलिंग चैम्बर में जो वाटर था वो बॉयल हुआ। ओके, तो उन्होंने एक बॉइलिंग चैम्बर लिया, उसमें वाटर को बॉयल किया। ये वाटर इस असेंबली से होते हुए इस दूसरे चैम्बर में गया, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ही सर्कुलेटेड 4 गैसेज इन सेकंड चैम्बर लाइक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर तो उस बॉइलिंग वाटर से आ ही रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया पूरे सेटअप को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू एट 800 डिग्री सेल्सियस, और उन्होंने ये मिक्सचर कंडेंसर के थ्रू पास किया फिर। एंड आफ्टर फ्यू वीक्स ही फाउंड दैट, एक वीक के बाद उन्होंने जब ऑब्जर्व किया जो कंडेंसर के बाद जो लिक्विड फॉर्म हुआ था, तो उन्होंने पाया कि जो ये लिक्विड था इसमें एलेनाइन, ग्लाइसिन, एस्पेरेटिक एसिड, जो अमीनो एसिड थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, वो फॉर्म हो गए हैं। ओके, तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो अर्थ की प्रिमिटिव सिचुएशन थी वो ऐसे ही थी। जो गैस थी वो इवॉल्व होती रहती थी, गैस इवॉल्व होने से वो वाटर बनाती थी, उसके बाद थंडरिंग होती थी, तो वो वाटर कंडेंस होके जो डिप्रेशंस मौजूद थे अर्थ पे, क्योंकि उस टाइम तो डिप्रेशन था अर्थ पे, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता रहता था, थंडरिंग होता रहता था, तो ये वाटर उन पिट्स में भर गया। ओके, तो इस तरह प्रिमिटिव ओशियन फॉर्म हुए, और उसके बाद जो ये रेगुलर चलती रही बहुत सालों तक ये प्रक्रिया, तो वहां पे फर्स्ट जो अमीनो एसिड है वो फॉर्म हुए। अमीनो एसिड के बाद न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुए, और ये जो सारे जो कोलाइड करके इन्होंने एक सेल को बनाया। ओके, और उस टाइम जो सेल बनी होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी जीवित रही। ओके, उसके बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने, यूनिसेल्युलर जो एनएरोबिक थे। ओके, उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन फेवरेबल कंडीशंस फॉर्म हुई होंगी अर्थ पे, जिससे ऑक्सीजन आई होगी, और उसके बाद यूकैरियोटिक बने और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बने। तो इस तरह लाइफ फॉर्म हुई ऑन प्रिमिटिव अर्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। This slide is about the properties of life. Life has many properties like organization, metabolism, homeostasis, growth, reproduction, response and evolution. अगर सबसे पहले हम बात करेंगे organization की, as we all know, living things are highly organized. Living beings are of two types, unicellular as well as multicellular. Unicellular organism में जो single cell होती है उसमें भी बहुत सारी different organelles होती हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में फंक्शन करती हैं। अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू जो हैं वो मिलके कोलैबोरेट करके ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ वर्क करके किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम को बनाते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज द मेटाबॉलिज्म. As we all know, their life depends on many type of chemical reactions. Okay, and these chemical reaction make it possible for organisms to do work. हमें जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए वी नीड एनर्जी, और जो लिविंग थिंग्स हैं दे मस्ट यूज एनर्जी एंड कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस that sustain life. तो total जो है biochemical reaction they are occurring in an organism is called metabolism. Metabolism is of two types, anabolism and catabolism. Okay, now move to homeostasis. Homeostasis means living organisms can regulate their internal environment to maintain the relatively narrow range of condition needed for cell function. For example, you can take the body temperature. अगर बाहर भी कितनी भी हार्श इन्वायरमेंट हो, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट रिलेटिवली क्लोज टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में
इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो उसको कहते हैं हम होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है ग्रोथ। एज वी ऑल नो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो रेगुलेटेड ग्रोथ। जो सेल्स है दे इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इन नंबर्स ऑल्सो। जैसे आप सेल है वो डिवीज़न करती है, उसमें माइटोसिस मियोसिस डिवीज़न भी होता है। तो इस तरह सेल, कोई भी सेल है वो ग्रोथ करती है। एक यूनिसेल्युलर एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बनती हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिजम्स। ये रिप्रोडक्शन सबको पता है कि दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व ए सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड टू पेरेंट्स, मेल एज वेल एज फीमेल। And in last, response. Okay, as we all know, living organism also show response towards a stimuli, and they can change in their environment. They can move towards the stimuli and they can move away from the stimuli. ये आप ह्यूमन बींग्स में भी होता है, किसी सिंगल सेल में भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, इवन प्लांट्स ऑल्सो शो रिस्पॉन्स। ओके, and last one is the evolution. As we all know, population of living organisms can undergo evolution, meaning they can meaning that the genetic makeup of a population may change over time. ये natural selection भी हो सकता है और adaptation भी हो सकता है। डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी ही होगी। तो ये evolution भी is a important part of life. So this is all about this presentation. Now move to next one. So thank you all of you for listening patiently. If you have any question regarding this session, you can ask me in discussion forum, and we also discuss this topic in live session. So thank you.